صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کی گلیاں سبحان اللہ اور مدینے کی راتیں، کیا بات ہے۔ الحمدللہ ایک اور تاریخی مقام پر ہم موجود ہیں، اور جو ہمارا پروگرام فالو کرتے ہیں عالم تیرا پروانہ، ہم نے غزوہ خندق پر بھی ایک پورا پروگرام کیا ہے، اور یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں غزوہ خندق ہوا۔ غزوہ خندق کی داستان بھی بڑی عجیب ہے ناظرین، کہ یہاں پر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ون آف دا فرسٹ ایور مسلمانوں نے کوئی خندق کھودی، اور خندق والی جنگ ہوئی۔ یہ زبردست آئیڈیا تھا کہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک خندق کھود دی جائے اور اس میں آگ لگا دی جائے۔ تو کئی میٹر طویل جو ہے یہ خندق کھودی گئی، اس کے پیچھے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو پیچھے رکھا گیا اور گویا مدینہ پاک کو کارڈن آف کر دیا گیا خندق کے ساتھ۔ اور بڑے بڑے سرداران قریش آئے تھے، انہوں نے بڑی ٹرائی کی کہ کسی طرح خندق عبور کر لیں، وہ عبور نہیں کر سکے، بہت دن تک محاصرہ رہا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر صحابہ کرام جو ہے وہ جب خندق کھود رہے تھے تو بھوک بھی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ حضور پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، بہت بھوک ہے۔ تو پیارے آقا نے اپنا کرتا اٹھایا تو آپ کے جس پہ اقدس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اس معجزے کا بھی ظہور ہوا کہ ایک بہت بڑی چٹان تھی جو خندق کھودتے ہوئے نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے کوشش کی، مگر جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا حضور خندق نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ نبی پاک نے کوئی کرین نہیں منگوائی، پیارے آقا نے کدال اٹھائی اور ایک وار مارا تو ایک روشنی اور نور نمودار ہوا، اور 3 واروں کے اندر ایک روایت کے مطابق وہ ریزہ ہو گئی، اور پھر ایسا نور بھی ظاہر ہوا کہ ایک بار آپ کو شام نظر آیا، فارس نظر آیا، اور گویا 3 یمن نظر آیا۔ 3 ملکوں کی فتح کی بشارت بھی نبی پاک علیہ السلام کو گویا اس جو ہے وہ غزوے کے دوران دی گئی۔ یہی وہ غزوہ ہے جب حضرت جابر بن عبداللہ، پیچھے ان کا مقام بھی ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ہی میں اس مسجد میں بھی گیا ہوں، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی جب یہ صحابہ کرام کی بھوک دیکھی تو عرض کی کہ حضور ہمارے گھر دعوت ہے، اور ایک بکری تھی اور 1000 صحابہ آ گئے، اور سبحان اللہ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن اس آٹے میں اور ہنڈیا میں ڈالا اور فرمایا کہ ہنڈیا کو اس سے مت اتارنا، جو چولہا ہے، تو 1000 صحابہ آتے گئے، کھانا کھاتے گئے، سب کو پورا ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور یہاں ایک مقام ہے، میں پہلے تھوڑا سا چاہوں گا ہمارے کیمرہ مین آپ کو پورا دکھائیں کہ یہ ابھی انہوں نے جامع مسجد خندق بنا دی ہے، جسے آپ دیکھیں گے غزوہ احزاب بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہاں پر صحابہ کرام کے نام کی مسجد تھی۔ پہلے یہ 7 مساجد تھا، اور اب یہ 5 مساجد ہو گیا، کیونکہ اب 5 رہ گئی ہیں، 2 مسجدیں شہید ہو رہی ہیں۔ مگر ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ ان مسجدوں کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا جا رہا ہے، اور ہوپ فلی عنقریب یہ مسجدیں پھر سے شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور زیارت گاہ بھی ہوگی۔ بہرحال یہاں صحابہ کرام کے نام کی مسجدیں ہیں۔ اب میں جو آپ کو مقام دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ جو مسجد ہے یہ ترکوں کے دور سے بنی ہوئی ہے، یہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے نام۔ اس مسجد کا نام کیا ہے صاحب؟ یہ سیدنا سلمان فارسی کے نام سے مسجد ہے، اور ان کا یہاں خیمہ تھا، اور یہی وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ خندق جو ہے وہ کھودی جائے۔ آئیے آپ کو یہ مسجد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ مسجد ہے، پہلے تو کلی میں یہ میں نوافل کی ادا کی، یہ حضرت سیدنا سلمان فارسی کے نام پر، اور بند ہو گئی ہے، ورنہ پہلے الحمدللہ نوافل بھی ہم پڑھتے تھے۔ تو یہی وہ صحابی ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ خندق کے جو مین مشورہ دینے والے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہنے کو تو کہ اس پورے سینیریو کے جو ہیرو تھے سیدنا سلمان فارسی تھے، کیونکہ ان کا مشورہ تھا کہ حضور ایسی خندق کھود دی جائے، اور یہ بالکل نیا آئیڈیا تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ خندق کھودی گئی، اس میں آگ لگائی گئی، اور کفار بہت دنوں تک کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح مدینے میں آ جائیں، وہ مدینے میں نہیں آ سکے۔ پھر ایک آندھی آئی، ان بہت سردیوں کے دن تھے، یہ بڑی ٹھنڈ کے اندر یاد رہے جنگ ہوئی تھی، تو بہت سردیوں کے دن تھے، ایک ایسی تیز آندھی آئی، ان کے خیمے اڑ گئے، ان کے سامان تباہ ہو گیا، اور پھر یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی۔ یہ وہ مقام ہے۔ پہلے تو یہ سیڑھیاں بھی ہوتی تھی، کیا کہیں، جی چلتے ہیں اوپر انشاءاللہ، لیکن میں جگہ بتاؤں کہ نبی پاک علیہ السلام کا خیمہ یہاں تھا، صحابہ کرام کے الگ الگ خیمے تھے، سیدنا سلمان فارسی کا یہاں تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے یہاں پر دعا فرمائی، اور آج بھی علماء فرماتے ہیں کہ بدھ والے دن ایسا یہ بھی مسجد ہے، مسجد فتح، اس کا نام اس لیے مسجد فتح رکھا گیا کہ یہاں فتح کی بشارت ملی تھی، اور یہاں نبی پاک نے دعا کی تھی کہ آج بھی اگر کوئی علماء فرماتے ہیں بڑی مشکل میں ہو تو بدھ والے دن ظہر کے بعد یہاں آ کر دعا کرے، تو یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ بہرحال آج بدھ تو نہیں ہے، لیکن
मेरी यही तमन्ना थी, क्योंकि मस्जिद नबी शरीफ खुलने में अभी कुछ देर है, 2:30 बजे के करीब दरवाजे खुलेंगे, तो यही तमन्ना थी कि इस मुबारक मकाम पर हाज़िरी दी जाए, हमारे नाज़रीन को भी दिखाया जाए। तो अभी हम चलते हैं और वहाँ जाकर उसकी फ़ज़ाओं में जाकर इंशाअल्लाह मिलकर दुआ कर लेते हैं। इंशाल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह हर गरी फिक्र मदीना अल्लाह बता रहे हैं कि ये सारा इसलिए तोड़ा है कि यहाँ पर दोबारा तामीर होगी। अल्लाह के इसी तरह ये वो कई बार यहाँ हाज़िरी का शरफ मिला है, अंदर हमने नवाफिल भी पढ़े हैं, और अब तो खैर बंद है, लेकिन अल्लाह करे जिस तरह बता रहे हैं कि दोबारा तामीर हो जाए, और अल्लाह करे तो फिर हाज़िरी नसीब हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। रब करीम हम सब की इस दर पर हाज़िरी को कबूल फरमा। मस्जिद फतह के साए में खड़े हैं मौला, रब करीम मुसलमानों को सारी दुनिया में फतह अता फरमा। आमीन। जहाँ जहाँ कुफ़ार मज़ालिम कर रहे हैं मौला, उससे मुसलमानों को फतह नसीब फरमा। रब करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा, आमीन। सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। रब करीम हमारी, हमारे माँ बाप की और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। आमीन। हम में जो जिस परेशानी में है उस परेशानी को दूर फरमा। आमीन। और जितने हाज़रीन हमारे साथ शामिल हैं, बाद में शामिल हैं, अल्लाह से मुबारक फ़ज़ाओं का वास्ता सबकी मुश्किलें आसान फरमा। नफ्स व शैतान पर भी हमें गलबा अता फरमा। आमीन। शैतान से अल्लाह हमें मुकाबले में जीत अता फरमा। आमीन। ईमान सलामत लेकर कब्र में जाना नसीब फरमा। आमीन। जब तक जिंदा रहें बार बार हरमैन तय्यबैन की हाज़िरियाँ हमारा मुक़द्दर फरमा। मदीने की फ़ज़ाएँ बार बार देखना नसीब फरमा। आमीन। जो तड़प रहे मौला उन्हें भी इस दर की हाज़िरी अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह जितने सहाबाए किराम ने ग़ज़वा खंदक में हिस्सा लिया, सबके मज़ारात पर करोड़ों अनवारों तजल्लियात की बारिश फरमा। बिलख़ुसूस सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अल्लाह उनके मज़ार पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन, सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला कमाल के सहाबी हैं, और इनकी हिस्ट्री भी वन ऑफ द यूनिक हिस्ट्री है। ये वो सहाबी हैं जिन्होंने तमाम सहाबा में सबसे बड़ी उम्र पाई, तकरीबन 250 साल इनकी उम्र, और इनको 100 से ज़्यादा साल लगे नबी पाक अलैहिस्सलाम को तलाश करने के लिए। ये प्यारे आका को गोया यूँ समझिए इन्होंने बड़ी, कहते हैं बड़ी चाहतों से है इस दर को पाया। ये एक के बाद एक राहिब के पास जाते, तो जो उस ज़माने में ईसाइयों के राहिब थे, कि मुझे बताओ कि मैं अब इबादत अल्लाह की कैसे करूँ, तो वो किसी और राहिब के पास भेज देते, उसका इंतकाल हो जाता, वो किसी और के पास भेज देते। फिर आखिर में जो राहिब था उसने कहा कि देखो अब आखिरी नबी के ज़हूर का वक्त होने वाला है, अगर तुम उन्हें तलाश करना चाहते हो तो उस राहिब ने बताया कि वो मदीना मुनव्वरा में आएंगे, यसरब की वादी में आएंगे, जहाँ खजूरों के दरख्त होंगे। सैयदना सलमान फ़ारसी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मदीने आ सकते, तो उन्होंने एक काफ़िले वालों को कहा कि तुम मुझे ख़रीद लो। काफ़िला मदीने जा रहा था कि मुझे भी साथ ले जाओ। कहा उन्होंने कहा हम तुम्हें गुलाम बनाएंगे। आप गुलाम बन गए, और गुलाम बनकर मदीने आए, और आप मदीने पाक में खजूरों के एक बाग में मजदूरी, यहूदी का बाग था। अच्छा, उस राहिब ने नबी पाक की 2 निशानियाँ बताई। कहा कि आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की 2 निशानियाँ हैं कि वो सदका कबूल करेंगे, ज़कात कबूल नहीं करेंगे, सदका कबूल नहीं करेंगे, हदिया कबूल करेंगे, सदका वो नहीं खाएंगे। दूसरी निशानी है कि उनके कांधों के दरमियान मोहर नबूवत है। अल्लाह अकबर। अब हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी आ गए और उस बाग में खजूरों तोड़ते थे दरख्त पे चढ़कर। अचानक किसी से उनको थोड़े अरसे बाद आवाज़ आई कि अल्लाह के आखिरी नबी जो हैं वो मदीने पाक में मबूस हो गए हैं, और एक ऐसा शख्स आया है जो अल्लाह की तरफ बुलाता है। तो उन्होंने वही खजूर के दरख्त से जो है वो नीचे उतरे और खजूरें लेकर फ़ौरन दौड़े दौड़े नबी पाक की बारगाह में आए। प्यारे आका को कहा कि हुजूर मैं आपके लिए सदका लाया। नबी पाक ने फरमाया सदका हम नहीं खाते, बाकी सहाबा किराम को दे दिया। एक निशानी पूरी हो गई। दूसरे दिन फिर खजूरें लेकर गए, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्ज़ किया कि हुजूर ये आपके लिए हदिया लाया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ हदिया हम कबूल करते हैं। तो प्यारे आका ने तनावली फरमाई, सहाबा किराम को भी दी। तो फिर कहते हैं एक निशानी तो पूरी हो गई, दूसरी बाकी।
सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार नबी पाक की बारगाह में आए तो प्यारे आका ने चादर पहनी थी। तो कभी इधर जाते कभी इधर जाते कि थोड़ी सी हवा आए, चादर ऊपर हो और मैं मोहरे नबूवत देख लूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दिलों के हालात जानते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर उतारी, कहा ए सलमान जो देखना चाहते हो आप देख। तो सलमान फारसी गए, लिपट गए नबी पाक से, खूब चूमा, फिर कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। फिर नबी पाक ने, याद रहे नाज़रीन, बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता कि सैयदना सलमान फारसी ये ईरान से आए, ये फ़ारसी थे। यानी सहाबाए किराम की जमात में ये पहले फ़ारसी थे और इनका मर्तबा ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत सलमान फारसी को अपने अहले बैत में शामिल किया। सुभान अल्लाह। फारस के होते हुए फरमाया सलमान मेरे अहले बैत से। तो ये ख़ास मर्तबा इनको हासिल है जो किसी और कौम से आए, अरबी भी नहीं थे, मगर इनको फरमाया कि ये मेरे अहले बैत से हैं। और यही वो सैयदना सलमान फारसी हैं जिन्होंने ये ग़ज़वा खंदक इसी मैदान में वो लाजवाब, वो शानदार मशवरा दिया। इट्स वन ऑफ इनका यूनिक एक स्ट्रेटजी थी। इससे पहले ये स्ट्रेटजी कभी नहीं अपनाई गई थी कि खंदक खोदी जाए, बहुत बड़ी 5 मीटर, मुझे याद पड़ता है मैंने पढ़ा था कि 1000 साहबा थे तो 10-10 साहबा को 10-10 मीटर दे दिया गया, ये सब ये खोदेंगे। और फिर उसमें आग भी लगा दी गई। दुश्मनों ने बड़ी छलांगे मारने की भी कोशिश की, मगर वो इतनी बड़ी खंदक थी, बीच में आग थी कि कोई नहीं आ सका। 1-2 लोग आए, फिर उनको मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने उनका काम तमाम किया, तो मुसलमान सिक्योर रहे और यहाँ से दुश्मन भाग कर गए। तो ये शानदार मर्तबा है सैयदना सलमान फारसी का। तो गोया ग़ज़वा खंदक के जो मेन हीरो हैं, बड़ा मकाम है सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो माशाअल्लाह कुछ देर पहले हम ग़ज़वा उहद की जगह पर थे, उहद के शुहदा और उहद के सहाबा का हमने जिक्र किया, वो वाक़या आपको बताया। आज ग़ज़वा खंदक वाली जगह पर कुछ वाक़या खंदक बयान करने की सआदत मिली। अल्लाह पाक उन तमाम सहाबा के दर्जों को बुलंद फरमाए। हम क्यों ना दिलो जान से कहें कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। भाई साहब इनका मज़ार मुबारक कहाँ है? हाँ, हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार मेरे इल्म में तो नहीं, लेकिन गालिबन इनका मज़ार जो है जन्नतुल बकी में ही होगा, क्योंकि ये मेरा ख्याल है, मुझे जो कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, इनका एक और वाक़या मैं भूल गया कि ये जब मुसलमान हो गए ना, तो ये इनका जो मालिक था ना, वो इनको आज़ाद नहीं करता, यहूदी था। तो उसने कहा, उन्होंने कहा मुझे गुलामी से आज़ाद करो, मैं नबी पाक के पास जाकर इल्म दीन सीखना चाहता हूँ। तो उसने इतनी मुश्किल शर्त रखी कि कई ओकिया सोना, यानी ऑलमोस्ट कई अंडे के बराबर सोने के मुताबिक उसने मांगा। और उसने कहा कि मुझे बहुत सारे दरख्त, कितने, 300 खजूर के दरख्त, खजूर लगे हुए, फल लगे हुए। तो खजूर के दरख्त के बारे में आता है, 4-5 साल बाद जाके फल देता है, 7 साल बाद, 7 ईयर्स के बाद वो फल देता है। तो अब 7 साल तो गए ना, 7 साल बाद ही आज़ादी मिलती है। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने सहाबाए किराम से सोना जमा किया और फिर खुद गए उसके बाग में, और मेरे आका ने अपने हाथों से पौधे लगाए, उसे पानी दिया, देखते ही देखते वो दरख्त बड़े हुए और फल देना शुरू किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तो क्या बात है कि ये बाग भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा था। सैयदना सलमान फारसी का बाग बड़ा मशहूर था, आपको वो बाग है अभी भी दोबारा वो चला दिया था, दोबारा थोड़ा सा है इलाका, चले थोड़ी सी जगह मौजूद है इंशाअल्लाह। ये यानी ये वो हस्ती है, यूँ देखा जाए इनकी शान समझो कि इनको आज़ाद करने की कीमत नबी पाक ने अदा की। यानी इनका मर्तबा देखे ना कि नबी पाक ने अपने हाथ से पैसे भी दिए, दरख्त भी लगाया, सैयदना सलमान फारसी को आज़ाद करवाया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम। याद आई जिसका मजमून है कि अब जरा समझिए, हबशा में बिलाल सबकत ले गए, रोम में सुहेब रोमी सबकत ले गए, फारस में सलमान फारसी सबकत ले गए, और अरब में मैं सबकत ले गया। इस हदीस का मजमून ये बना कि तमाम रूमियों के जो सरदार हैं वो हज़रत सुहेब रूमी हैं, तमाम यानी अफ्रीकन्स के सरदार बिलाल हबशी हैं, तमाम फारस के, ईरान के लोगों के, उस तरफ के लोगों के सरदार सैयदना सलमान फारसी हैं। अच्छा, ये नबी पाक की आजिज़ी है कि आपने फरमाया कि अरबियों में मैं हूँ, वरना नबी पाक तो सबके आका हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन इनका मर्तबा समझने के लिए कि नबी पाक ने इस तरह इनके फज़ाइल बयान किए। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बात को तो यही मज़ा है।